हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं 24 के क्लाइमैक्स सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। रिएक्शन। अभी करने क्या वाले हैं? அங்கிள் என்ன ஏதாவது வேணுமா? மணி ரூம் அங்க இருக்கு. நான் உன்னை பார்க்கலாமா வந்தேன். சொல்லுங்க. மணி உன்னை விரும்புகிறாங்கிறது அவன் நடவடிக்கையிலிருந்தே தெரியுது. அவன் கூட நீ இருந்தீன்னா அவன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும். அதான் मुझे लगता है वो मनी ही है। தெரிஞ்சுட்டு போகலான்னு வந்தேன். सच में? हो सकता है। வீட்டில் பெரியவங்க கிட்ட பேசுவா. பேசுங்க. சந்தோஷமா நீ போய் படுத்துக்க. குட் நைட் அங்கிள். குட் நைட். क्योंकि अत्रेया इतने अच्छे इंसान तो है नहीं। अच्छा, उन्होंने एक चाल चली सर। तो उनकी उनकी कुर्सी लेकर वो आए। ओ भाई साहब, தனியாக வந்திருக்கீங்க, என்ன கூப்பிட்டுருக்கலாமே. வாங்க சார், ரூமுக்கு போகலாம். அற்புதமாக நடிக்கிறீங்களே சார். இந்த வீட்டில் யாருக்குமே சந்தேகம் வர வாய்ப்பே இல்லை. எல்லாரையும் நம்ப வச்சிட்டீங்க. கொஞ்சம் விட்டுருந்தா மற்றவங்கள மாதிரி நானே நம்பியிருப்பேன். துக்கமாக இருக்கிற மாதிரி நடிக்கலாம், ஆனால் மனசுக்குள்ள அவ்வளவு துக்கத்தை சுமந்துக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி எப்படி சார் நடிக்கிறீங்க? கொஞ்ச நாள் தான் நீங்கள் உயிரோடு இருக்க போறீங்கிற விஷயத்தை எப்படி சார் அவ்வளோ ஈஸியாக எடுத்துக்கிறீங்க? இது உங்கள் மகனுக்கு தெரியணும் சார். அவன் உங்கள் பிள்ளை, ரொம்ப திறமையான வாட்ச் மெக்கானிக். நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும், உங்களுக்காக பண்ணுவான். பார்க்காத அம்மாவை பார்க்கணுங்கிற பாசத்தில் பண்ணுவான். ओ भाई साहब, அந்த வாட்சை 26 ये खुद ही बता रहे हैं सब कुछ। உங்கள் நிலைமையை நீங்களும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க, என்னையும் சொல்ல விட மாட்டேங்கிறீங்க. நாளைக்கே இங்கேருந்து கிளம்பணும்னு வேறு சொல்கிறீங்க. சாரி சார், கூடவே இருந்தும் உங்களுக்கு எதுவும் உதவி செய்ய முடியலைங்கிற ஏழாம் வேலை இப்படிலாம் பேசிட்டேன். தப்பாக இருந்தால் மன்னிச்சிருங்க. குட் நைட் மித்ரா. சரி சார், குட் நைட். ये भी तो जानते नहीं कि तो एटलीस्ट उनको सच्चाई तो भी पता चले कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एक नाटक किया उन्होंने और उसके वजह से कितनी बड़ी सच्चाई उनको पता चलती। ஒரு நாளுக்குள்ள எந்த நேரத்துக்கு வேணாலும் போக முடியல இந்த வாட்சால. ஏன் நாட்களை கடந்து போக முடியல? वो जानते थे कि ये நான் என்ன பண்ணணும்? मनी है और इसलिए उन्होंने वो बात उनके दिमाग में डाल दी। வாட்ஸ் மிஸ்ஸிங். अच्छा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा, डेट डेट अगर अगर उन्होंने डेट ऐड कर दी तो वो 24 आवर में उस डेट में जा सकते। नहीं, उन्हें आइडिया मिला है कि अगर मैं सिंपल से वॉच में अगर डेट ऐड कर सकता हूँ कैलेंडर, हाँ, तो मैं इसमें भी कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। बिल्कुल। ओ भाई साहब, मैं कहा था ना, वो उनका प्लान ही था कि हाँ समझ गया इससे मैं। ताकि उनको जाल में फंसाया उन्होंने और वो घड़ी बनाने पे मजबूर किया। भाई साहब, बहुत कंफ्यूजन है इस मूवी में। இந்த வாட்ச் உங்களுக்காக மாத்திட்டேன். உங்க தேவைக்கு ஏற்றபடி மாத்திட்டேன். देखा, इसमें भी डेट से ऐड किए हुए हाँ। हैं, सिर्फ 24 आवर्स नहीं तो। விஷயம்ல ஒரு சின்ன மாற்றம் பண்ணியிருக்கேன்.
வாட்ச்ல ஒரு நாளுக்குள்ள முன்னும் பின்னும் போறதுக்கான இருக்கு. है ना, वो डेट ऐड की उन्होंने इसमें। ஆனா நாட்டில் கடக்கிறதுக்கான தேதி இல்லை. நான் அதை மட்டும் தான் செய்திருக்கேன். இதை வச்சுட்டு நீங்க நாட்களை கடந்து போகலாம், மாதங்களை கடந்து போகலாம், ஏன் வருஷம். यही तो उन्हें चाहिए था। எனக்காகவா? ஏன்பா? நான் கேட்டனா இந்த வாட்சை பார்க்கும்போதெல்லாம் நான் எல்லாத்தையும் எழுததான் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது. நீ எனக்காக ओ भाई साहब, फाइनली जो चीज, இப்ப நீங்க நினைச்ச क्या प्लानिंग की उन्होंने इस चीज के लिए। அப்பா உங்களுக்கு இந்த தேதி நேரம்லாம் ஞாபகம் இருக்காப்பா? அப்பா ஆத்ரயா ஆத்ரயாடா. ओ தேதி நேரம் ஞாபகம் இருக்கான்னு கேட்கறியா? எப்பறம் மறப்பேன். 13/1/1990 कटिंग जाने वाली। சாயந்தரம் 5 மணி. இந்த வாட்ச அடைச்சு கடவுளாகணும்னு ஆசைப்பட்டனா சைலண்ட் போன நாள். சேதுராமன் அவன் உன் அம்மாவோட சேர்ந்து செத்த நாள். அவங்க 2 பேரையும் கொன்னது நான் தான்டா. போறேன் மறுபடியும் அதே நாள் அதே நேரத்தில் என்ன இப்படி ஆக்கல உங்க அப்பன் உங்க அம்மா, ஏன் உடனே சேர்த்து கொலை பண்ண போறேன். ओ अब वो पास्ट में जाके इन्हें भी नहीं छोड़ने वाले। 2 தடவை கொலை பண்ண போறேன். அதிர்ஷ்டசாலி ओ भाई साहब, நான் தான்டா. वो वॉच हो ही नहीं रही है। हुआ क्या है। Everybody, ओ भाई I'm a watch mechanic. எனக்கு இதெல்லாம் சர்வ சாதாரணமான விஷயம். நீ சேதுராமன் அண்ணன்னா நான் சேதுராமன் புள்ளடா. हाँ நீ என்னதான் தெளிவா பொய் சொன்னாலும் எங்க அப்பாவோட 6வது விரலை பார்த்தப்போ சந்தேகம் வந்துச்சு. ओ यस வாட்சை ரெடி பண்றவன் அது சரியா வேலை செய்தா செக் பண்ண மாட்டானே. அதான் நான் நேத்து இன்னைக்கு வந்து பார்த்தேன். उन्होंने वो चेक तो किया होगा कि क्या आने वाला है। நன்றி வாட்ச நான் ஏன் உன் கையில கொடுத்தேன். 26 வருஷத்துக்கு பின்னாடி போகணும்னு எனக்கும் தெரியும். ஆனா எந்த தேதி எந்த நேரம் அது உனக்கு மட்டும்தான். तो उन्हें पता नहीं था ना कि कौन सी डेट पे वो हाँ उनके माँ बाप तो मर गए। என்னோட இந்த அம்மாவுக்காக போறேன். वो पीछे गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ना पीछे गए। एग्जैक्ट वही डेट। अब ओ बस। तब के अत्रेया हम्म वापस आ गए होंगे ना, इसलिए उनके भी हम्म उन्होंने उस वॉच को हाथ लगाया हाँ ताकि वो भी मनी के साथ साथ पास्ट में जाए। हाँ क्योंकि पिछली बार जब अत्रेया ने टाइम ट्रैवल करने की कोशिश की तो उन्होंने मित्रा को हाँ
समझ गया मैं कि वो पीछे आ गए अभी टाइम लाइन में, लेकिन मुझे लगता है वो भी तो आए होंगे फिर। तो वही नहीं, मित्रा नहीं आए हैं, सिर्फ अत्रे आए हैं। हाँ पावर कट हो गई। उन्होंने पहले ही वो काम कर दिया। வாட்ச். சேது குழந்தை எங்க? சேது எங்க அவன்? அங்க என்ன தேடுறீங்க? நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், வாட்சை காணும். அங்கதான் எங்கேயாவது இருக்கும். 2 நிமிஷம் அவனுக்கு பால் கொடுத்துட்டு வந்து நானும் தேடுறேன். இல்ல இங்க हाँ वॉच भी नहीं है। வாட்ச் கட்டிட்டு அங்க என்ன தேடுறீங்க? ऑब्वियस है ना कि वो पीछे चले गए तो उसके हाथ में होगी ना वो। हाँ பசிக்குதாடா? अच्छा वो उस समय छोटे थे, एग्जैक्टली। உன் அப்பாவை பாரு, உன் கையில வாட்ச கட்டிட்டு எல்லா இடத்துலயும் தேடுறாங்க. டேபிள் கடியில தேடுறாங்க. अब इतनी छोटी उम्र में बता कैसे पाएंगे कि वो मरने वाले हैं। शायद उनके फादर ही वो एनालाइज कर रहे हैं कि हुआ क्या है। நிமிஷத்துக்கு वो नहीं समझ में आ जाएगा। அதுக்குள்ள அம்மாவை மிஸ் பண்ணிட்டியா? அதுக்குள்ள அம்மாவை மிஸ் பண்ணிட்டியாடா? मुझे लगता है उसपे से जो चेंजेस किए गए ना हाँ, वो उन्हें वो उनको ध्यान में आ जाएंगे। ओ भाई उसका साहब, वो जो ऊपर का डायल था वो उन्होंने बनाया ही नहीं था। हाँ और डेट भी मेंशन है। और उन्होंने ऐसे फंक्शन बिल्कुल नहीं बनाए थे। हाँ பிரியா, பிரியா, ये वॉच मेरा सीधे उनको समझ में आ गया उन्होंने क्या किया है। भाई साहब उनका इंटेलिजेंस बहुत जबरदस्त है। My sweet, sweet darling. ஓ பையன் இந்த உலகத்தோட ஃபர்ஸ்ட். हाँ என்ன சொல்றீங்க? இவன் எதிர்காலத்துல இருந்து இங்க வந்திருக்கான். 26 வருஷம் ஞாபகத்தோட மறுபடியும் நம்ம குழந்தையா வந்திருக்கான். வாங்கடா ராஜ், வாங்க வாங்க. ஐயா. இந்த வாட்ச் உன் கையில இருக்குன்னா இதை கண்டிப்பா இவன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஆமா பிரியா, இங்க பாரு, இந்த டேட் டிவைஸ் என்னோட டிசைன்லயே இல்ல. एग्जैक्टली। எதுக்காக சேர்த்திருக்காங்க? 2016ல இருந்து இந்த एग्जैक्टली। என்ன காரணம்? ஒருவேளை நம்மகிட்ட எதையோ சொல்லணும்னு வந்திருக்கானோ? நீங்க சொல்ற மாதிரி நம்ம கிட்ட அவன் ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைச்சிருந்தா அவன் பேச முடியற வயசுக்கு போயிருப்பான்ல சேது. அவன் பேச முடியற வயசுல நாம அவன் கூட இல்லையோ? अब वो उसी रास्ते से जा रहे हैं जहाँ से वो हाँ भाग निकले थे। अच्छा हो गया उन्होंने ये सारा कैलकुलेट कर लिया कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। कुछ तो हुआ होगा कि उन्हें उस एज में आना पड़ा जहाँ पे वो बोल ही नहीं सकते। உடனே கேட்ட பூட்டி வை, யாரும் வெளியே போக கூடாது. ஓகே சார், நான் பாத்துக்கிறேன் சார். और इस बार उन्होंने उन्होंने उनको बाकी मारा लोग पीछे वाले रास्ते से भेजे उनको हैं। मारा नहीं क्योंकि उनको उससे शक हो गया था। மித்ரா, நீங்க இரு. இந்த தடவை அவன் எந்த வழியிலையும் தப்பிக்க கூடாது. ओ भाई என் அன்பு சகோதரா, அறிவு கொழுந்தே, ஞான பழமே, எங்கடா இருக்க? மீண்டும் உன் அண்ணனோட பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் சேது. उनके पास तो टाइम ट्रैवल मशीन है ना? नहीं बैटरी डेड है, सॉरी। यही तो ब्लास्ट हुआ था ना पहला। 26 வருஷம் கழிச்சு உன்னை பார்க்க ஆசையோட ஓடி வந்திருக்கேன்டா. நீ கண்டுபிடிச்சிய அந்த அற்புத கருவியோட அருமையை அனுபவிச்சு வந்திருக்கேன் சேது. ஏய், எங்க இருக்க? என் குரலை கேட்ட உடனே ஓடி ஒளிஞ்சிருப்பிய. अब ये करेंगे क्या? उसको चार्ज।
ஓ उन्होंने पावर ही कट कर दिया ना। ட்ரை பண்றியா? முடியாது. இந்த வீட்டோட பவரை கட் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கேன். சேது, my brother. உன்னை பார்க்கணும் என் மனசு துடியா துடிக்குது. உன்னை அப்படியே सच में यार भी करेंगे क्या? கத்தி எடுத்து மெதுவா குத்தி குத்தி கொல்லணும்னு தவியா தவிக்குது. எங்க இருக்க? சேது! சேது, எனக்கு இப்போ ஒண்ணு தோணுது. நீ என் தம்பி, என் ரத்தம். எனக்கு தேவை இந்த வாட்ச். அதை கொடுத்துரு. நான் உன்னையோ உன் குடும்பத்தையோ ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன். ओ அதை வாங்கிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருப்பேன். इतने अच्छे तो ये है नहीं. हम्म ओ भाई साहब इन्होंने कुछ तो प्लान किया होगा। हम्म. நான் எதை சொன்னாலும் நம்புறேன். ம்? அவ்வளவு நல்ல நடனா மகன் எங்க? எங்கடா வச்சிருக்கான்? என்ன ஒரு மோசம். ओ भाई साहब எங்க அவன்? இதுக்குள்ளதானே இருக்கான். मार खा रहे हैं यार. நீ சாகணும்டா சேது. அந்த வாட்ச் ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கணும். அதுவும் என்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கணும். ओ शिट ओ भाई साहब उनका ट्रैप उन पे ही भारी पड़ रहा है। ओ भाई साहब कर क्या रहे हैं? वो बेबी का था ना. हाँ अच्छा उनके बाद उनको पता थोड़ी ना था कि इसमें बम था या नहीं था। हाँ. ओ भाई साहब ओ तो इन्होंने इनको बचा लिया वहां पे। यार ये फिर बच गए. आज उनको समझ में आया हाँ कि वो कि ट्रेन उस में दिन था में- क्या। हाँ. ओ भाई साहब बट ये फिर से बच गए यार. अब ये बचेंगे कैसे? इस पे सारी चीजें डिपेंड है। இந்த வாட்ச் சார்ஜ் பண்ண ஒரே நிமிஷம். இங்க இரு. இதை சார்ஜ் பண்ணிட்டா எல்லாத்தையும் மாத்திடுவேன். இங்கதான். तुम्हें पता है उस दिन वो जब वायर फिक्स कर रहा होता है तो एक वायर नीचे गिर हाँ, जाती है. तो exactly. शायद वो हेल्प करेंगे उन्हें. तुमने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये यहाँ पे जब काम कर रहे हाँ होते तो एक ऊपर वायर से शिट ओ
इसे मार दिया होता तो बेहतर होता। लेकिन वो उनके काम में आ गया ना। शिट। டேய் கலை இந்த வாட்டி உன்னை உயிரோட விட்டது நல்லதா போச்சு हाँ वो खुद सोच रहा हूँ कि आयुष्मान क्या हुआ। शायद टाइम फ्रीज हुआ। हाँ हो सकता है। हाँ टाइम फ्रीज हुआ। हाँ बट कैसे पॉसिबल है? वॉच वॉच पर में वॉच तो डेट थी ना। क्या हुआ वही तो समझ में नहीं आ रहा है। उसे उसको लेके नीचे मार देंगे। दिमाग। बट हुआ कैसे ऐसा? मुझे खुद नहीं समझ। हाँ यही तो वो चीज। हाँ मैं हाँ इसी के बारे में हुई तुम कब? अच्छा उन्होंने उसको हाथ लगा लिया था। हाँ पकड़ लिया उसको। और उसे ज्यादा वक्त नहीं लगता है चार्ज होने में। हाँ वो बस एक पावर स्टार्ट चाहिए उन्हें। हाँ तो जब ये बुला रहा था तब उन्होंने वो कर लिया उसे। भाई साहब क्या दिमाग लगा है। एक सोच में पड़ गया होगा कि ये कैसे होता है। अब तो दोनों भी मर गए ना। अब मित्रा भी मर गया। என்ன சேது நமக்கு இந்த வாட்ச் வேண்டாம். நடந்ததெல்லாம் போதும். பிரியா தூக்கி போட்டுடுங்க. सही भी है। उनका बोलना बिल्कुल सही है। क्योंकि ऐसा इन्वेंशन करना अगर किसी के लिए हेल्पफुल है तो ऐसे भी पॉसिबिलिटीज होती है कि इसका इस्तेमाल गलत तरीके से ही किया जाए। मुझे लगता है वो उनके पास ही रखते तो शायद सेफ होती। अगर किसी को ऐसे मिल बट गई ये कैसे वापस जाएंगे? वो कभी वापस जाएंगे ही नहीं ना। वो यहाँ से जिंदगी उनकी शुरू हो जाएंगी। फिर वो बड़े होंगे उनके मम्मी पापा के साथ बड़े होंगे ऐसा। और वो उनकी जो अब माँ बनी है वो हाँ भी वो नहीं बनेंगे। अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जी पाएंगे। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे। तो उनकी भी लाइफ बच जाएंगी। हाँ, भाई साहब சாரி நாங்க இங்க உட்காரலாமா தாராளமா வாங்க உட்காருங்க. ओ भाई साहब குழந்தை ரொம்ப அழகா இருக்கான். என்ன பேரு? மணிகண்டன். மணின்னு கூப்பிடுவோம். மணிக்கண்ணா, இங்க வா இங்க வா இங்க வா. அட எவ்வளவு ஆசையா வரா. என்னடா என்ன உனக்கு தெரியுமா? எங்க போய்கிட்டு இருக்கீங்க? புது வாழ்க்கை ஆரம்பிக்க. நிஜமாவா? நானும் தான். எங்க வீட்ல கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணிருக்காங்க. அப்படிங்களா? தேங்க்யூ. என்னாச்சு? ஒன்றும் இல்லை வரும்போது என்ன வேலை பாக்குறீங்க? ஐ எம் பேசிக்லி சயின்ஸ் வாத்தியாரா? ஊர்ல எங்க அப்பா ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அதுக்கு ஒரு நல்ல சயின்ஸ் வாத்தியார் வேணும்னு जो தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. फन करने वाले थे। வேலை பார்க்கலாமே. புது வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கணும். कैसी चीजें यार एक दूसरे से जुड़ रही है। ஆரம்பிக்கலாமே. கோபால சமுத்திரம் ஆமா. तो वहां जाके रहे। கோபால சமுத்திரம் तो वजह भी तो गोपाल समुद्रम में समन्ता भी तो है वीरू उनसे भी तो मिलना है। आखिरकार सारी चीजें भाई साहब। वाओ सच में यार मैंने कभी ऐसी एंडिंग नहीं देखी किसी मूवी की कि इस तरीके से भी पॉसिबिलिटी है करके। गजब। दिखा रहे। மணிகண்ணா எங்க இருக்கடா? எங்க போனாங்க? எங்க போயிருப்பான்? வழக்கம் போல சத்யா எங்க இருக்காளோ அங்கதான் அவ கூட அவனும் விளையாடிக்கிட்டு இருப்பான். கொஞ்ச நேரம் ऐसे सत्या के साथ खेल रहा हूँ। பாருங்க அவன் உங்களை மாதாஜி மாதாஜின்னு கூப்பிட்டு ஐஸ் வச்சுட்டே இருக்கான். அதை கேட்டு நீங்களும் உருகிட்டே இருக்கீங்க. ரொம்ப செல்லம் கொடுக்குறீங்க அவனுக்கு. இத பாரு சத்யபாமா.
இந்த வயசுலயும் உனக்கு இமேஜினரி ओ तो ये कुछ अभी चीजें नहीं चेंज हो सकती வயசுல கேர்ள்ஸ்க்கு வர பாப்புலரான டிசீஸ் ओह गॉड, ये अभी भी उन्हें यही बता रहे தெரியுமா? டாம் அண்ட் ஜெரி கார்ட்டூன்ல நான் தெரியுவேன், ட்விங்கிள் காமிக் புக்லயும் நான் தான் தெரியுவேன். நான் படிச்சு முடிச்சு பெரிய வாட்ச் மெக்கானிக் ஆக போறேன். बहुत मैकेनिक। நாம என்ன லவ் பண்றது எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல. என்ன லவ் பண்ணணும்னா என் அம்மா என் மாதாஜி கிட்ட தான் பேசணும். அவங்க சொல்ற பொண்ணை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன். பிகாஸ் ஐ எம் வாட்ச் மெக்கானிக். आई एम अ वॉच मैकेनिक। कुछ वो लड़की ने रो दिया है भगवान बंद कर अपनी Stop crying. Stop. भाई साहब। तो दोस्तों 24 मूवी सच में बहुत अनएक्सपेक्टेड है और आउट ऑफ द बॉक्स ये मूवी बनाई है। मतलब मैंने इसकी एंडिंग ऐसी नहीं सोची थी कि ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन बहुत अच्छी एंडिंग लगी जिस तरीके से चीज़ें चलती है और उनके फादर ने किस तरीके से वो चीज़ें समझ ली कि ये घड़ी मतलब सामने से फ्यूचर से आई है और उसमें जो डायल लगा होता है ईयर वाला डायल जिससे ईयर में हम आगे पीछे जा सकते हैं, तो उससे वो समझ जाते हैं कि ये घड़ी मैंने नहीं बनाई है, ये उनके सन ने बनाई है और वो पीछे आए हैं। तो ये चीजें जो थी दोस्तों, यहाँ से कहीं ना कहीं इस मूवी का टर्निंग पॉइंट हो गया है। बिल्कुल। और काफ़ी मज़ेदार लगा है ये मुझे। बहुत सिंपल वे में और बहुत स्मार्ट वे में इसे ये क्लाइमैक्स दिया गया है। ज़्यादा फाइटिंग सीन्स नहीं है अननेसेसरी, और या फिर इसे बहुत ज़्यादा खींचा नहीं गया था। उन्होंने जैसे पहले ही वाले सीन में दिखाया गया कि बहुत स्मार्ट तरीके से उन्होंने अथरेया को अपने रास्ते में से हटा दिया था, उसी तरीके से अभी भी वो बस अपना दिमाग चला रहे थे, हाथ पाँव नहीं चला रहे थे। और जैसे वो वॉच चार्ज कर लेते हैं, वो टाइम को फ्रीज कर लेते हैं फिर से, और अथरेया को नीचे सुला देते हैं, और वो जो उन्होंने बुलेट फायर की थी वो खुद अथरेया को लग जाती है। और इस तरीके से उनका मतलब ज्यादा कुछ ना करते हुए भी बहुत कुछ कर अच्छे लिया है। इस और तरीके से टाइम को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे वर्क करता है। जैसे कि जो मनी होते हैं वो बचपन में चले गए, तो वो पीछे जाने के बाद वो छोटे होंगे और अथरेया जो यंग हो जाएंगे, और घड़ी वहां पे ना होके उनके बच्चे के हाथ में होंगी, क्योंकि वहां से ही दोस्तों वो पीछे गए थे। तो चीजें कैसे काम करती है टाइम के हिसाब से इस मूवी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और मुझे लगता है ये मूवी टाइम अहेड है। सूर्या की मूवी हमने जितने भी रिएक्ट की अब तक और जितनी भी हमने पर्सनली देखी है, वो सच में टाइम अहेड ही होती है और बहुत अच्छी अच्छी मूवीज सूर्या से यूनिक कंसेप्ट था। फिर से कुछ मूवीज हम देखते हैं तो बहुत प्रेडिक्टेबल होती है कि अच्छा आगे ये वाले हो सीन में जाएगा, ये होने वाला है, तो ये मूवी सच में अनप्रेडिक्टेबल थी कि इवन अथरेया की जो एक्टिंग थी ना, उन्होंने जो किया था, उन्होंने जो प्लान किया था, वो लास्ट टाइम में समझा था कि उनके दोस्त पकड़े गए हैं, जो मित्रा होते हैं वो पकड़े गए हैं कि उन्होंने झूठ बोला, वो भी एक प्लान का हिस्सा होता है। तो अथरेया का सोचना दोस्तों सच में वो मास्टरमाइंड तो है ही। वो उनका 180 मिनट का फर्क दिखाया गया है, लेकिन दोनों का दिमाग बहुत अलग चलता है। एक साइंटिस्ट है तो एक मास्टरमाइंड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो दोनों भी कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगे इसमें। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। और इसके साथ दोस्तों आप हमें पेट्रियन और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी मूवी के साथ। बाय बाय।